So Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum, and this is Electrical Machines lab number 10. The title of the lab is to observe the characteristics of a single phase capacitor start induction motor. So objective of this experiment is that students will learn the operating characteristics of a single phase AC induction machine, and which is actually the capacitor start type. They will change the shaft load conditions and observe the change of induced speed and torque, and then they will plot the required graphs, which is output power versus efficiency, speed, power factor, reactive power, and torque versus efficiency. So in the apparatus we have a capacitor start induction motor with DC shunt couple machine, and the panel has some instruments like ammeter, voltmeter, wattmeter, power factor meter, single phase AC power supply, rheostat, tachometer, load, and connecting leads. So this is the overview of the trainer, and as you can see that on the topmost we have the voltmeter, we have the ammeter, we have a wattmeter, we have a power factor meter, and we have a DC voltmeter and a DC ammeter. Then we have a main, this is the main MCB, which is the breaker. Then we have a contactor which will initialize, which will turn on the AC power supply. We have a push button which is actually to connect and disconnect the auxiliary winding. There's a fuse for the rheostat. We have been using it for a lot of labs, and it's a variable resistor or a potentiometer. Here we have a DC power supply for field excitation, and at the end we have a load. This is for the generator as well. And you can see that there is a induction motor, and then there is a DC generator. So this is the generator and this is the motor. So the circuit diagram is here, and as you know that the induction motor has single phase induction motor has two windings. One is the starting or auxiliary winding, and other is the main winding. I'll also post some videos on the basic concepts of these single phase induction motors, so that you can get an overview of that, and you can get a clear insight of these motors. आपको क्लास में भी करवाया जाएगा, लेकिन एक एनिमेटेड कुछ वीडियोस मैं साथ में आपके लिए पोस्ट कर दूँगा. सो द सर्किट हेयर वी हैव first of all we have a AC power supply, then there is a voltmeter connected to that power supply, we have a wattmeter, power factor meter, an ammeter is connected in series with the capacitor, and the push button, and then the starting. So the starting winding is connected, the phase of the starting winding is connected in series with the ammeter, a capacitor, and with a push button, and the neutral is connected directly to the power supply. Similarly for the main winding, the neutral is connected here and the phase is connected here. So this is about the capacitor start induction motor, and on the right side you can see that this is the DC shunt machine. We have been using it as a generator to apply load on the shaft to see what is the response of the motor to load. So what is the procedure? First of all, we will connect the single phase power supply to the motor. We will make the mechanical load minimum. We'll switch on the single phase power supply, and then we'll measure the speed and the voltage, phase current, the output and input powers, the power factor, and we'll measure the load on the load indicator, and then we will convert it to the torque.
and we will gradually increase the load, and we will see that what is the effect on the speed and other parameters of the and other measurements of the machine. And this is the table. I have performed this lab physically on the real apparatus, which videos I will be tagging. I will merge those videos with this presentation, and you can see the phase voltage was around 238. Then we had the main winding current, starting winding current, input power was calculated by multiplying the voltage, main winding current, and the power factor, and the power factor was 0.95 lagging. And the speed, we see that the speed is decreasing as the load is applied, the torque is increasing as the load is applied. And here you can see that the value of load, which is shown on the load indicator, is multiplied by 0.19, which is actually the distance from the center of the shaft to the motor or the generator. This is actually the moment arm, and 9.8 is actually the gravitational acceleration. And then the output power is calculated by help of torque and RPM. And then the slip, remember that this is not the percentage slip but on the only slip, so we will not multiply it with 100, and we will get the answer in significant figures. Then the formula for slip is synchronous speed minus rotor speed divided by synchronous speed, and the synchronous speed can be calculated by the formula 120 f by p, and f is the frequency, which is 50 hertz, and p is the number of poles, which is 4 for these motors, single phase induction machine in the lab, and therefore ns is 1500, and nr is the rpm which we have measured. And then I have calculated the efficiency, and the end column shows the load current. Efficiency is very low here, 8.12, but it will increase as you will apply more and more load. So efficiency increases as you apply the load, because in result of more load on the motor, the output increases. And then there are some graph which you will make: output power and efficiency, speed, RPM efficiency, and torque efficiency, and then you will write the conclusion. So I have made some videos of this capacitor start motor, and you can see that here are a few videos in which I have shown the overview, and then how the connections are made. So this is the video in which I have made the connections, and I will merge this video with this presentation, and it's on the real apparatus, so you'll get a good insight of what is going on in the experiment. So this is the overview as well. So I will merge these videos with the presentation, and you can go through it. And I've also posted this lab here, and I'm going to upload the YouTube video as well. So if in case of any questions, so you can write in the comments, or you can if you want, we can arrange a separate Google Meet session for the question answers. So that's it, and now enjoy the video. Okay, so this is the capacitor start capacitor start induction motor, and which is coupled with the shunt machine, DC shunt machine. तो जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है, इसके ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको 6 टर्मिनल्स नज़र आ रहे हैं. टॉप पे अगर आप देखेंगे S1 है और S2 है. दिस इज़ फॉर दी
starting winding or the auxiliary winding. Then you have R1 and R2, this is for the running winding or main winding. And then there are two terminals for the capacitor, C1 and C2. The machine is coupled with the DC shunt machine, which will be using as a generator. And in this machine we have two connections, F1 and F2, which are for the field excitation, and A1 and A2 are for the armature connection, जिससे हम आउटपुट लेंगे. नाउ हमने कनेक्शंस जो हम लेंगे बोर्ड से लेंगे, ठीक है. सो इन द बोर्ड वी हैव अ 220 volts AC supply, single phase, a push button through which we will connect and disconnect the auxiliary winding. Then we have the rheostat. In the rheostat we have three terminals, and this is used to control the field of the generator. Then we have this DC supply for the generator again for excitation, and then there are the load terminals. So first of all, what we are going to do, we are going to connect the induction motor with the supply by the help of the diagram. So let's start. So before making any connections, I would like to recommend you to check the wires if you want to check the wires. So I'll be using a multimeter here, and I will check the wires for the continuity. So you can simply take any wire, any flexible wire, and set your multimeter on the buzzer and just connect both the ends of the wire and check the connectivity. Now बज़र आपका ऑन हो गया तो इट मीन्स के ये वायर ये आपस में दोनों कनेक्टेड है, ठीक है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि हमारी जो सप्लाई है, ठीक है, ये जो हमारी 220 वोल्ट्स की सप्लाई है, इसको हमने कनेक्ट करना है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, ठीक है जी. और फिर उसके बाद रनिंग वाइंडिंग से भी कनेक्ट करेंगे, लेकिन यूज़ करेंगे साथ में मीटर्स, मल्टीमीटर्स, वोल्टेज और एम्पेयर्स के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कनेक्ट अ वोल्ट मीटर टू माय सप्लाई, फ्रॉम माय सप्लाई टू चेक दी वोल्ट्स, ठीक है. तो मल्टीमीटर अगर आप ले लें, ठीक है, हम जस्ट गोइंग फॉर अ UT55 जो कि हमारे लैब में अवेलेबल है, एंड इसमें रेंज बनी हुई है यहाँ पर AC वोल्ट्स के लिए. तो इसको मैं सेट कर दूँगा 750 AC वोल्ट्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि 220 के लिए हमारे पास 750 रेंज ही बनती है. देन मल्टीमीटर के अंदर चार आपके पास प्रोब्स लगाने के लिए टर्मिनल्स होते हैं. A इज़ फॉर एम्पेयर्स, मिली एम्पेयर्स, MA स्मॉल m. दिस इज़ फॉर वोल्ट्स, ओहम्स, continuity, and also the hertz, and this is the common. So voltage के लिए आपके जो दो कनेक्शन होंगे, ठीक है, एक आपका लग जाएगा वोल्ट्स में, ठीक है, एंड ये कनेक्शन आपका चला जाएगा आपके फेज़ को, ठीक है. तो ये देखें, ये कनेक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया है. एंड फॉर फेज़ हम ब्लू वायर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्लू ब्लैक ब्लू रेड येलो ब्लू हम यूज़ करते हैं. मैं जस्ट वायर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, छोटी वायर यूज़ करता हूँ. एंड फॉर द कनेक्शन ऑफ न्यूट्रल हम ब्लैक यूज़ करते हैं. अर्थ के लिए जो है हम यूज़ करते हैं ग्रीन वायर, ठीक है. तो ये जस्ट वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है, ठीक है. सो दिस इज़ दी फेज़ वायर ऑफ माई सप्लाई. सेकेंडली अब मैं एक ब्लैक वायर लगा देता हूँ इसको न्यूट्रल के लिए. तो ये देखें कॉमन, एंड कॉमन से ये मेरा न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट हो गया. सो दिस इज़ नाउ द कनेक्शन. और इसके साथ मैं लिख देता हूँ V फेज़, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि ये मेरा फेज़ वोल्टेज था. जस्ट हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है. तकरीबन काफ़ी ज़्यादा वोल्ट्स आ रहे हैं, 237 वोल्ट्स हमारे पास इस वक्त आ रहे हैं, ठीक है. ओके, सो वोल्टेज के हमारे कनेक्शन हो गए.
नाउ अब हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्ट करनी है, ठीक है। जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ओके, डायग्राम अगर मैं यहाँ पे रख सकूँ तो दैट विल बी बेटर, अगर यहाँ पे मैं रख सकूँ। चलें, डायग्राम आपके पास होगी तो आप उससे देख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है, ठीक है, जिसमें फेज वोल्टेज है, दिस इज़, ये अभी हमने कनेक्शन लगा दिया है, ठीक है। और अब हम स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग को कैपेसिटर के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर सिंपलिसिटी मैं वॉट मीटर और पावर फैक्टर मीटर इस वक्त स्किप कर रहा हूँ, एंड ताकि आप जो है आसानी से कनेक्शन बना सकें। और फिर जनरेटर साइड का कनेक्शन भी हम बनाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि हमने एक जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसको कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो वोल्ट मीटर पे हमने कनेक्शन लगाया था, हम वहाँ से भी एक कनेक्शन ले सकते हैं, एंड सिमिलरली हम एक कनेक्शन हम ले सकते हैं अपने सप्लाई से भी, ठीक है। तो ये जो आपने कनेक्शन बनाया था आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है, इधर भी आप लगा सकते हो, और यही कनेक्शन आपको इधर नज़र आ रहा है, ठीक है, सप्लाई के साथ, तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। सप्लाई में आपने लगा दिया इसको, एंड सप्लाई से ये कनेक्शन अब आ जाएगा मेरे मीटर को, ठीक है। तो एक एम मीटर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, और एम्प्स के लिए डिफरेंट, ठीक है, इसमें रेंजेस हैं। दिस इज़ फॉर डीसी एम्प्स एंड दिस इज़ फॉर एसी एम्प्स। तो एसी एम्प्स के लिए मैंने इसको 20 पे सिलेक्ट कर लेना है। देन एम्पेयर्स के लिए आपको हमेशा ये याद रखें कि जो एम मीटर है वो सीरीज़ में लगता है। सो ए दिस इज़ मिली एम्प्स, ठीक है जी। तो इन दोनों को आप यूज़ करोगे और साथ में कॉमन यूज़ करोगे, ठीक है। स्टैंड बाय पे ये चला जाता है। तो ए पे मैं, क्योंकि मैं एम्पेयर्स की रेंज यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ए पे लगाऊंगा। अगर मैं मिली एम्प्स की रेंज यूज़ कर रहा होता तो फिर मैं इसको यहाँ पे लगा देता, ठीक है। तो एम्प्स की रेंज के लिए मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है जी, ठीक है। एंड देन जो मेरा नेक्स्ट कनेक्शन है, ठीक है, वो अब मेरे पास जाएगा आगे कैपेसिटर को, ठीक है। ओके, सो साथ में मैं वायर्स चेक भी करता जाऊंगा कि ऐसा ना हो कि कोई वायर जो है फॉल्टी हो और फिर हमारा सेटअप जो है वो ख़राब हो जाए। तो अब देखें, यहाँ से मैं कॉमन से ये कनेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है, और कैपेसिटर को मैंने दे दिया। अगेन कैपेसिटर भी आपके पास सीरीज़ में ही लगेगा, ठीक है। जो आपका जिस तरह ये मीटर मैंने सीरीज़ में लगाया, ठीक है, सीरीज़ कनेक्शन है। यहाँ फेस से मेरे पास जो सप्लाई का फेस था वहाँ से मेरे पास आ गया है एम्प्स पे, और यहाँ से अब मेरे पास C1 के ऊपर चला गया जो कि मेरा कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर का एक टर्मिनल है। इसके ऊपर अगेन मैं लिख लेता हूँ स्टार्टिंग वाइंडिंग IS, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का मेरे पास करंट मुझे बताएगा, ठीक है। मीटर्स अभी आपको सारे नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब हम रीडिंग्स लेंगे तो उस टाइम फिर ये आपको सब नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मैं कैमरे को ऐसे सेट करूँगा कि आपके पास वहाँ पे रीडिंग्स आए। ओके, देन नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि जो हमारा कैपेसिटर था, ठीक है, इस कैपेसिटर को आगे मुझे कनेक्ट करना है विद द पुश बटन, ठीक है। तो अब यहाँ से एक कनेक्शन सीरीज़ में जाएगा पुश बटन पर, ठीक है। तो ये आपके पास एक कनेक्शन हो गया। अगेन मैं कोशिश मेरी होगी कि मैं इसको जो है इस तरह रखूँ कि ज़्यादा ये नज़र ना आए, ठीक है जी। तो ये आपके पास कनेक्शन यहाँ पे लग गया।
ओके, सो अब हमारा कैपेसिटर भी कनेक्ट हो गया है एंड कैपेसिटर के साथ हमने पुश बटन भी कनेक्ट कर दिया है। अब ये कनेक्शन आगे आपके जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग को। तो ये कनेक्शन यहाँ से आ जाएगा, ये आपके स्टार्टिंग वाइंडिंग को, ठीक है। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया है स्टार्टिंग के साथ। तो अब स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो फेज़ है वो कनेक्ट हो गया। दिस वाज द फेज़ ऑफ द स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब न्यूट्रल का जो कनेक्शन है दैट इज़ अगेन वेरी सिंपल। आपने जस्ट क्या करना है कि जो S2 है, ठीक है, S2 को आपने कनेक्ट कर देना है न्यूट्रल के साथ, ठीक है। दिस इज़ द न्यूट्रल। अगेन आप ये अपने वोल्ट मीटर का जो न्यूट्रल है वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप सिंपली क्योंकि यहाँ पे इस वक्त कैमरा में यही नज़र आ रहा है तो आई जस्ट गो विद दिस, ठीक है। वायर भी मैं नीचे कर देता हूँ ताकि कनेक्शन आपको सही नज़र आए। तो S2 का जो कनेक्शन है मैंने यहाँ पे इसके साथ कर दिया है, ठीक है। अब हमारी जो रनिंग वाइंडिंग है जस्ट इसके कनेक्शन रह गए हैं, तो ये कनेक्शन भी मैं कर देता हूँ। अगेन काफ़ी सिंपल है। रनिंग के लिए कनेक्शन मैं इस तरह करता हूँ कि इसका फेस जो है मैं येलो से कनेक्ट कर देता हूँ ताकि हमारे पास नज़र डिफ्रेंशिएट आप कर सको कि ये रनिंग वाइंडिंग है और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ठीक है। तो अगेन जो आपके यहाँ पे जो सप्लाई है, ठीक है, यहाँ से आपने कनेक्शन लगा देना है, ठीक है। ये कनेक्शन अगर आपको नज़र आ रहा है, मैं जस्ट इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैंने कनेक्शन लगा दिया है एंड अगेन इसको मल्टीमीटर से आपने गुजारना है, ठीक है। सो दिस इज़ अगेन अ मल्टीमीटर और इसको मैंने सेट करना है फॉर AC एम्प्स, ठीक है जी। तो ये अब मेरे पास यहाँ पे AC एम्प्स पे आप देखें तो सेट हो गया। देन ये कनेक्शन आएगा और A को लग जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से अब ये कनेक्शन जो है आपके पास ये A को लग गया है, ठीक है। एंड सेकेंडली ये जो इसका आउट होगा, जो कि जिस तरह आपको पता है कि मैं सीरीज़ में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये जो आउट है, ठीक है, एक यहाँ पे आप लगा दो एंड जो सेकंड आउट है ये आपका कहाँ जाएगा, ये आपका लग जाएगा रनिंग वाइंडिंग के, ठीक है, R1 को। अगेन हम डायरेक्शन भी चेंज करेंगे फिर बाद में, अगर हमने करनी हुई मैं आपको डायरेक्शन चेंज करना भी इसकी सिखाऊंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग मैंने यहाँ पे कनेक्शन लगा दिए एंड नाउ दिस इज़ योर IM। अच्छा, मैं इसको ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ, ज़्यादा विजिबल है ब्लैक मार्कर। एंड ओके, सो ब्लैक मार्कर से मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज़ IM, ठीक है। तो ये मेन वाइंडिंग का करंट हो जाएगा और इसको भी मैं अरेंज करके रख देता हूँ। फिर एंड में जब हम रीडिंग्स लेंगे तो फिर मैं कैमरा ऐसे सेट कर दूँगा कि आपके पास सारे मीटर्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ओके जी। सो नाउ मशीन में हमारे पास एक ही कनेक्शन रह गया है जो कि न्यूट्रल है हमारी रनिंग वाइंडिंग का। एंड दिस न्यूट्रल जस्ट आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ इसके साथ, ठीक है। जस्ट आप जंपर लगा के इधर कनेक्ट कर दें या फिर आप इसको ले जाएं और इधर कनेक्ट कर दें। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों को आपस में भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसको जो है आप डायरेक्ट मेन न्यूट्रल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन हमारे जो मोटर के कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए। अब मैं जनरेटर की तरफ जाऊंगा, ठीक है, जनरेटर के कनेक्शन बनाऊंगा। ओके, सो नेक्स्ट नाउ अब हमने कनेक्शन बनाने हैं अपने जनरेटर के। सो जनरेटर के कनेक्शन काफ़ी सिंपल हैं। आपने जस्ट जो DC पावर सप्लाई है, ठीक है, इसको आपने कनेक्ट करना है रियोस्टेट के थ्रू इस फील्ड वाइंडिंग को और फिर आर्मेचर से आपने आउटपुट ले लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू कि
यहाँ पे हम एक कनेक्शन बनाएंगे अपने सप्लाई का रियोस्टेट के साथ। अच्छा, रियोस्टेट जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आपने फर्स्ट टर्मिनल लेफ़्ट साइड का टर्मिनल यूज़ किया है और फिर सेंटर से आपने आउटपुट लिया है तो क्लॉकवाइज रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और एंटी क्लॉकवाइज कम होगी। देन सिमिलरली अगर आपने लेफ़्ट साइड राइट साइड का टर्मिनल यूज़ किया है तो फिर आपकी जो रेजिस्टेंस है वो एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा होगी और क्लॉकवाइज कम होगी। तो ये ज़रा इसका ख्याल आपने रखना होगा। तो यू कैन यूज़ इट इन बोथ द वेज। तो अब सेंटर जो टर्मिनल है इससे मैं यहाँ पे F1 को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो फील्ड की एक्साइटेशन हमारे जो पॉजिटिव है इसका चला गया है। सो इन केस ऑफ डीसी जो है हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे और इन केस ऑफ एसी हम फेज़ और न्यूट्रल की बात करेंगे। सेकेंडली जो कनेक्शन है यहाँ से आप F2 को लगा दें तो ये आपके कनेक्शन जो है कंप्लीट हो गया है एक्साइटेशन का। अब आपने लोड कनेक्ट करना है अपनी आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। सो ठीक है जी, तो काफ़ी सिंपल है। ये कनेक्शन आप A1 से ले लें और अगेन एक मीटर आपने कनेक्ट करना है जो कि आपको लोड करंट बताएगा, ठीक है। और इस दफ़ा हम इसको सेट करेंगे DC एम्प्स पे, ठीक है। ये देखें DC एम्प्स पे आपने इसको सेट कर दिया है और अगेन सीरीज़ में हम कनेक्शन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे A एंड देन जो नेक्स्ट कनेक्शन होगा आपका वो जाएगा इस वायर को मैं चेक कर लेता हूँ अगेन। इस वायर को मैंने चेक नहीं किया। ये आपका चला जाएगा आपके लोड को, ठीक है जी। तो ये कनेक्शन अब इस तरह बन गया है कि यहाँ से ये कनेक्ट हो गई है ये वायर, सही है जी। ये कनेक्शन और फिर ये कनेक्शन आगे इधर चला गया है आपके लोड को, ठीक है। और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ IL, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि ये लोड करंट था। न्यूट्रल भी आप कनेक्ट कर दें। तो यहाँ से A2 को मैं कनेक्ट कर देता हूँ नेगेटिव के साथ। तो ये जो कनेक्शन है अगर आप देखें तो अगर आपको थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट कर देता हूँ, ये देखें ये कनेक्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से मैंने लगा दिया, ठीक है। तो कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अब हम जाएंगे रन इसको करेंगे और फिर उसके बाद साथ में रीडिंग्स भी लेंगे। ओके, सो यहाँ पे सेटअप हमारा हो गया है, ठीक है। ओके, सो रन करने का प्रोसीजर रीडिंग से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 2 बटन्स हैं, ठीक है। ये आपका मेन ब्रेकर है और मेन ब्रेकर के साथ एक इमरजेंसी बटन है। इसको आप पुश करके इमरजेंसी के केस में मोटर को रोक सकते हैं और फिर इसको आप रोटेट करके आप इसको दोबारा से वर्किंग कंडीशन में ला सकते हैं। दिस इज़ द मेन ब्रेकर। आप इसको ऑन करेंगे तो आपके पास सप्लाई सारी ऑन हो जाएंगी। उसके बाद ये आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर है और इससे आपके पास जो आपकी मेन सप्लाई है वो ऑन ऑफ होगी, ठीक है। और इसके साथ ये पुश बटन है। तो जब आपने स्टार्ट करनी है तो अगर आप सिर्फ इसको दबाएंगे तो आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपने जब इसके साथ फिर अपनी स्टार्टिंग वाइंडिंग को आप इंगेज करोगे, ठीक है,
तो काफ़ी शोर हो जाएगा, तो इस वजह से मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि मेन कॉन्ट्रैक्टर के साथ जब आप जो पुश ऑन है, इसको जो पुश बटन है इसको आप प्रेस करोगे तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है या ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो इंगेज हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग इंगेज होगी तो उसके साथ ही आपके पास जो आपकी मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप इस बटन को आप इसको लीव कर सकते हैं। मैं दोबारा से डेमोन्स्ट्रेट करूँगा। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू विल रन इट। ओके, सो अब यहाँ पे मैंने सेटअप कर दिया है। आई होप कि आपको मीटर्स नज़र आ रहे होंगे और इन्हीं मीटर से हम रीडिंग्स लेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ दी फेज़ वोल्टेज। ठीक है, दिस इज़ दी मेन वाइंडिंग करंट, दिस इज़ दी स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट एंड दिस इज़ दी लोड करंट। तो ये अब आपके पास यहाँ पे 4 मीटर्स हैं, 4 मीटर्स हैं, इनको हमने सेट कर दिया है और इन्हीं से हम अपनी रीडिंग्स लेंगे। इसके अलावा जो टॉर्क का मीटर है वो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो एंड में फिर मैं आपको दिखा दूँगा कि किस तरह आपने टॉर्क मेजर करनी है। सही है जी। एंड जस्ट आई विल एंड साथ में हम जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास एक यूनिटी का UT373 एक मिनी टैकोमीटर है और इससे हम स्पीड को मेजर करेंगे। ठीक है, तो इससे हम आसानी से अपनी स्पीड जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो टैकोमीटर जो है इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और इसमें मुख्तलिफ आप देख सकते हैं कि लेज़र के लिए अगर फोकस हो जाए, हाँ लेज़र के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ मोड्स हैं। ये इस वक्त RPM मोड में है। ठीक है, ये आपको प्रीवियस मैक्सिमम RPM बता रहे हैं, मिनिमम जो थे प्रीवियस जो भी इस पे रीडिंग्स ली गई होंगी। एंड अगेन तो डिफरेंट मोड्स आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं कि आप रोक लें किसी रीडिंग को, तो ये डिफरेंट आपके पास। ठीक है, काउंटर आप यूज़ कर सकते हैं RPM, तो आप डिफरेंट पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको भी अभी देखेंगे, रीडिंग इससे लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोटर को ऑन कर लेते हैं। अच्छा, एज़ यू कैन सी कि जो हमारी मोटर है, ठीक है, वो अगर आप देख लें तो डायरेक्शन उसकी क्लॉकवाइज, अगर आप राइट साइड से इसको देखेंगे तो डायरेक्शन इसकी क्लॉकवाइज है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज रन करे तो मुझे क्या करना होगा, मतलब हाउ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ योर मोटर। और इंडक्शन मोटर की डायरेक्शन सिंपल है काफ़ी। जस्ट आप क्या करें कि कोई भी एक या स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग को आप इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह अगर मैं रनिंग वाइंडिंग को इंटरचेंज कर लेता हूँ, फेज और न्यूट्रल इसका, तो अब क्या होगा कि ये मोटर दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ये देखें, अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अब ये उस तरफ रोटेट करेगी। अच्छा, तो मीटर्स सारे स्टैंड बाई पे चले गए हैं, इनको मैं ऑन कर लेता हूँ और साथ में हम रीडिंग्स भी इसकी ले लेंगे। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल, स्पीड की रीडिंग भी हम साथ साथ लेते जाएंगे। सो अगर स्टार्ट में आप देखोगे तो जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है, जस्ट स्टार्ट में ये रीडिंग देगी और उसके बाद फिर इसकी कोई रीडिंग नहीं होगी क्योंकि डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो हमें स्टार्ट में ही इसको नोट करना होगा एंड देन लोड करंट चेंज होता रहेगा और मोटर और जो वोल्टेज और करंट है मोटर पर भी हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ जी। ठीक है, तो स्टार्टिंग अगर आपने नोट नहीं किया दोबारा से मैं इसको ज़्यादा टाइम के लिए ऑन करता हूँ, तो अब आप देख लें स्टार्टिंग के तकरीबन 7 एम्पेयर्स थे। ठीक है जी, और उसके बाद फिर अब 0 हो चुके हैं। ठीक है, वोल्टेज आपका जो है वो 238 है और जो करंट है वो 2.09 है। ठीक है, लोड करंट इस टाइम 0.01 है। स्पीड मेजर कर लेते हैं जी। ठीक है, स्पीड जो है इस टाइम
आपके पास मैं फोकस कर सकूँ इसको तो ठीक है 13.4 ठीक है, दिस इज़ द स्पीड। तो ये हमारी फ़र्स्ट रीडिंग जो है ये हो गई है। अब हम इस पर लोड ज़्यादा करेंगे ठीक है। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे जो लोड है इसको मैंने ज़्यादा कर दिया है एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं है हमारी जो मोटर की रीडिंग्स हैं। स्पीड डेफिनेटली चेंज होगी, टॉर्क भी साथ में चेंज होगा, टॉर्क फिर हम एंड में देख लेंगे। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि जो स्पीड है वो हमारी कम होकर अब हो गई है 1406.4। ठीक है, इस तरह अगेन मैं लोड ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, अगेन मैंने लोड ज़्यादा कर दिया है, लोड मेरे पास 0.27 हो गया है और रीडिंग्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आरपीएम जो है अब मेरे पास 1400 आ गए हैं आरपीएम। अगेन मैं इसको ज़्यादा कर दूंगा लोड को। ठीक है, अभी मेरे पास तकरीबन लोड हो गया है 0.36 ठीक है, और दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्पीड 1390.9 एंड अगेन एक रीडिंग और ले लेते हैं। नाउ यू कैन सी के लोड आपके पास हो गया है 0.43 और स्पीड हम देख लेते हैं कि स्पीड ठीक है। सो दिस इज़ स्पीड, इट इज़ अराउंड 1383। ओके, एक रीडिंग और हम ले लेते हैं। ठीक है, नाउ द लोड इज़ 0.53 and the speed is now 1373. So this was the experiment. ओके, सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट और अब मैं आपको टॉर्क की रीडिंग्स की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, दोबारा से हम इसको रन कर लेंगे और टॉर्क की रीडिंग हम डिफरेंट लोड पे ले लेंगे इसके लिए। ओके, सो जो हमारी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर थी, एक्सपेरिमेंट हमने इसका कर लिया एंड नाउ अब हम इसकी टॉर्क की रीडिंग्स लेने लगे हैं। ठीक है, इस वक्त जो लोड है वो 1 पे है। अगर मैं कैमरा को ज़रा ओके, सो इस वक्त जो लोड है वो हमारे पास 1 है। ठीक है, 1 लोड है और फिर हम इसको ज़्यादा करेंगे और इसके साथ मैं आपको जो लोड करंट है मैं वो भी कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं इसको लगा सकूँ किसी तरह, फिर मुश्किल है। तो अगर मैं आपको दोनों शो कर सकूँ, चलें आई विल शो यू। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, आई विल जस्ट हैंडल इट माई सेल्फ। तो यहाँ पे आपको लोड करंट भी शो होगा। ठीक है, और लोड करंट के साथ जो है ये रीडिंग्स आपको शो हो जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट द मोटर। तो इसको आप एडजस्ट कर लें, 0 कर लीजिए। ठीक है, ठीक है जी। तो अब ओके, सो अभी लोड जो है वो 1 ओके। सो सेटिंग मैंने इसकी कर दी है। तो इस टाइम जो लोड है वो 0.09 है लोड करंट और जो रीडिंग है दैट इज़ 0.14। इसको फिर हम सेट करेंगे इस रीडिंग को। ठीक है, अब लोड करंट ज़्यादा हो गया है। ठीक
है 0.8 के लिए आप देखें वहाँ पे 0.18 भी आ रहा है, ठीक है। दैट इज़ द टॉर्क। और इसको इस टॉर्क को फिर हम एक फैक्टर पे सेट भी करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज द रीडिंग। मैं दोबारा से इसको कर देता हूँ, ठीक है। ज़ीरो से अगर हम इसको स्टार्ट ले लें, ठीक है, तो तकरीबन 1 पे हम अगर आप देखें तो 1 जो है इस पे 0.14 है टॉर्क, 0.16-14 के दरमियान है। फिर जब 2 हो जाता है लोड तो 0.18 है। फिर जब 3 हो जाएगा तो 0.22 है। then it is 0.24 on number 4, 0.28 on number 5 and 0.3 on number 6. Okay, so I would just like to conclude the experiment. You have seen all the videos now, and just these readings आप कंफर्म कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा है कि अभी जो वीडियो आपने देखी है उसमें सारी रीडिंग्स हमने कंफर्म कर ली हैं। एंड देन यू हैव टू मेक द ग्राफ्स। अभी मैं असाइनमेंट भी अपलोड कर दूँगा एंड आल्सो राइट द कंक्लूजन। सो दैट्स इट। एंड अगेन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इन केस ऑफ एनी क्यूरीज तो आप यहाँ पे मुझे अभी यूट्यूब वीडियो भी इस पर आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी, तो यू कैन ऑलवेज write a comment, ask in comments, or you can also if you there are a lot of queries, so we can arrange a session as well. So thank you very much and अपना ख्याल रखिएगा। Thank you जी।